Then we have Class B IP addresses starting from 128. This call is now being recorded. Thank you so much. So in classful addressing, we have this addressing. We have a classes that is A, B, C, D, E. Okay. For each and every IP address that is of 32-bit IP address, we have 4 octet. First octet, second, third, and fourth octet. Okay. And in class A, we have 8-bit, that is 1 octet in the network component and the remaining one in the host component. Okay. And likewise, we have for the class B IP address, we have 2 components. We have 2 octet for the network component and remaining 2 belongs to the host component. Okay. And the range is from 128 to 191. Okay. We need to remember these ranges: 0 to 127, then 128 to 191, then 192 to 223, then 224 to 239, and 240 to 255. Okay. So in this way, we can find it out. And for class D and for class E, that is used for multicasting, and the last one is reserved for the future use as per the theory. Okay, what they have written. If we consider the number of networks, how many networks are possible, so we can say that in class A IP address we have total 8 bits, but 1 bit which represent the network identifier. So we have -1, that is 8 minus 1 becomes 7. So 2 to 7, 128 networks are possible which can have class A IP addresses. Okay. We have class B IP addresses. Okay, we have class B IP addresses in which we have total 16-bit. Out of 16-bit, we have 2-bit reserved, which will act as a network identifier. Then we have remaining 14 bits. 2 to 14 becomes around 16,384, and likewise we have this one also. Okay, we have already done the revision, but एक बार थोड़ा वापस से मैं रिवाइज कर रहा था. Okay, तो ये हम लोगों ने देखा था. उसके बाद में फिर और क्या हम लोगों ने देखा था IP एड्रेसिंग में. हाँ, we have seen this one also. यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा. So we have taken this IP address 192.168.37.200. So we came to know that this IP address belongs to class C IP address. Okay, it belongs to class C IP address. Why? Because 192, and we can see the range 192 to 223. Okay, the leftmost decimal number from which we can easily identify, from which we can easily come to know the class of an IP address. Okay, so and ये जो वाला part था in which we have seen the trick how we can convert the binary into the decimal and decimal to the binary, just for the because we will be using these things. Okay, in the subnetting और दूसरे part में आपको use हो सकता है. So the common question which were asked regarding this IP addressing is the network ID. How you can find out the network ID? Okay, for example, if for a particular network, okay, so many computers are connected. Okay, so many computers are connected. One IP address given to this particular network, that is 192.168.37.200. So what will be the network ID? What will be the broadcast ID? Then how many number of hosts available or which are usable? So you can easily find out just by doing this simple thing. Like you can find the network ID. You can find the network ID by keeping the network component as it is, and just you have what you need to do. You need to change the host component. The host component was only this one, because you know that in the class C IP addressing, we have total 24 bits. We have total 24 bits which comes under the network component, and the remaining 8 bits which comes under the host component. Okay, so जितने भी host component है, आपके host octet है, उसको आप क्या करेंगे, इसको आप उसको 0 कर देंगे. Okay, it becomes your network ID. Then as in the same way we have a broadcast ID, and for this broadcast ID we have this IP address 192.168.37, and what that particular host component which you have made 0, so उसको 0 के बजाय आप उसको करेंगे all ones becomes 255, तो इसको 255 कर देंगे. अगर ये हमारा क्लास बी का IP एड्रेस होता तो हमारे 2 ऑक्टेट होते हैं. ओके, सो लाइकवाइज हम लोगों ने देखा. एंड देन बाद में हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट विच आर यूजेबल.
यूजेबल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं. सो ये हमारा 2^8 minus 2, 2^8 by number of host, and we know that the host component is the last one. Okay, तो ये जो लास्ट जो कंपोनेंट होता है आपका वो कितने बिट का होता है, टोटल 8 बिट का होता है. ठीक है, तो अगर ये 8 बिट का है सो वी कैन से 2^8 minus 2 why, because we have network ID and we have broadcast ID, we have already allocated. So minus 2, so it becomes around 254 number of hosts are possible in this particular network, जो कि आपने ये IP एड्रेस उसको दिया है. ओके, ये हम लोगों ने कल देखा. We have taken one more example of this IP address, that is 150.10.20.30. Okay, in that we know that this is it belongs to class B IP address. Why it belongs to class B IP address? Because it is ranging from 128 to 191. Okay, so if it range from 191 to 228, then it comes under the class B IP address. Okay, in class B IP address we know that the 16 bits belongs to the network component and remaining 16 bit belongs to the host component. Okay, so in the same way for the network ID, in order to find the network ID, we have made this host component as a 0. In order to find the broadcast ID, we have made 255, that is all ones to the host component. ये आपका host component था, इसको आपने 255 कर दिया, so ये आपका हो गया broadcast ID. And after that we have number of usable hosts 2^16. Why? Because we have total 8 and 8 16 bit which comes under the host component. So 2^16 minus 2 it becomes 65,000 around, जो भी आपका आता है. Okay, so ये एक छोटा सा एग्जांपल था. अब हम लोग को देखना है बेसिकली सबनेटिंग. इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैंने कल भी आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट एक थोड़ा सा आपको मैंने इशारा किया था खाली कि सबनेटिंग इम्पोर्टेंट है और सबनेटिंग क्यों यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, सबनेटिंग इज इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज सबनेटिंग का बेसिक रीजन क्या है, सबनेटिंग करते क्यों है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच एनीवन कैन आस्क टू यू कि भाई सबनेटिंग क्यों करते हैं हम लोग बेसिकली. ओके, सो सबसे पहले तो सबनेटिंग में सबसे पहले हम लोग अपना IPv4, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग राइट नाउ फॉर IP वर्जन 4. ओके, and for IP version 4, you know that IP version 4 is limited. Okay, this IP version 4 is limited because we have the limited IP addresses in each and in almost in each and every classes. Okay, that is from A and B and C. अब यहाँ पर इस लिमिटेशन को हटाने का, लिमिटेशन को रिमूव करने का हमारे पास में कुछ सॉल्यूशंस हैं. ओके, अब सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं. नंबर 1 सॉल्यूशन हो सकता है सबसे पहले कि भाई अगर आपके पास में पब्लिक आईपीज खत्म हो रहे हैं तो आप क्या करो, आप प्राइवेट आईपीज यूज करो. तो आप प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं. सब हम लोग उसमें जाना नहीं है, बस जस्ट कुछ सॉल्यूशंस हैं. ओके, एक तो बोलता है कि भाई प्राइवेट आईपी यूज करो तो आपका नेटवर्क सेपरेट हो जाएगा और आपको कुछ करने की, किसी से लेना देना कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं रहेगा. सेकंड सॉल्यूशन बोलता है कि भाई यू कैन गो विद द IPv6, IP वर्जन 6, जो कि IP वर्जन 4 के बाद का वर्जन है. So IP version 6 we have the next version, and in that around more than कितना भी बहुत सारे number of IP addresses are possible. Okay, यानी कि you can just imagine जो slides मैंने आप लोग को बताया था कि this is the box for IPv6, ये IPv6 का बॉक्स है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स आपका IPv4 का है. ठीक है, मतलब IPv4 इतना अगर बड़ा है तो आपका IPv6 इतना बड़ा है. ओके, because more number of IP addresses are possible in IP version 6. Okay, ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है. और थर्ड, अच्छा इसके ऊपर हम लोग ज्यादा आ भी नहीं सकते because not each and every organization is coming on IPv6. Okay, because अगर कभी वो IPv6 यूज भी करेगा तो फिर उसके लिए फिर थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू आ जाते हैं, जो कि अभी फिलहाल हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है. और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो लोग हैं वो IPv4 को ही प्रीफर अभी करके बैठे हैं. ओके, जब थोड़ा सा और मतलब क्या बोलेंगे इसको, IP एड्रेसेस कम होंगे, जब और रिक्वायरमेंट आएगा तो उस टाइम पे आई थिंक दे कैन स्विच टू द IPv6, बट जितनी अभी होना चाहिए उतना अभी फिलहाल नहीं है. सो वी हैव दिस सेकंड सोल्यूशन IPv6, एंड द थर्ड सोल्यूशन वी हैव फॉर दिस लिमिटेड IPs इज नथिंग बट द सबनेटिंग. तो सबनेटिंग इसका एक मेन सोल्यूशन है जिसको हम लोग बेसिकली IPv4 में रहते हुए भी कर सकते हैं. We'll try to see one example. Okay, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये सबनेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना. अगर आप लोग सबनेटिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
जस्ट एक कुछ बिट्स बोरो करने का कॉन्सेप्ट है, बट लेकिन आपको ये मेन समझना है कि व्हाई सबनेटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी डू द सबनेटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके, सो बेसिकली सबनेटिंग होती क्या है? सबनेटिंग इज बेसिकली अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ द नेटवर्क, लॉजिकल डिवीजन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। आपका नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस नेटवर्क, ये आपका इतना बड़ा नेटवर्क है। आई होप यू कैन सी दिस पेज। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई चीज मिस ना हो जाए, इसके लिए बार बार पूछ रहा हूँ। ओके, तो उसके रिप्लाई में कोई मैसेज मत टाइप करो, खाली हाँ बोल दो बस। हेलो एवरीवन, कैन यू सी दिस पेज? Yes, sir. Good, good. Okay, thank you. Okay, so I'm having this network. Okay, this is my network. Okay, ये मेरा network है, and in this network, you know, एक IP एड्रेस हम लोग ने इसको दे के रखा है, से 190.20.10.2, ये मैंने उसको IP एड्रेस दे के रखा हूँ, ठीक है। अभी IP एड्रेस के अंदर, फॉर एग्जांपल ये IP एड्रेस कौन से क्लास का है, जरा बताओ मुझे। वो 192 से आपका क्लास C शुरू हो जाता है, तो इट बिलोंग्स टू क्लास बी। आई होप आप सब लोगों ने राइट आंसर दिया होगा। दिस बिलोंग्स टू क्लास बी आईपी एड्रेस। थोड़ा सा मैं पीछे पलटा तो यू कैन सी दिस वन, ये आपका 191 तक है, और आपका जो 190 है इट कम्स अंडर द क्लास बी आईपी एड्रेस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास बी आईपी एड्रेस 16 बिट आपके नेटवर्क के, 16 बिट आपके होस्ट के, ठीक है। तो अब अगर कभी यहाँ पर आपके 16 बिट्स अगर क्या बोलेंगे उसको, होस्ट के है, और 16 बिट अगर नेटवर्क के है, तो आप अंदाजा लगा लो कि आपके कितने सारे होस्ट यहाँ पॉसिबल है। अगर आपके यहाँ पर होस्ट के 16 बिट्स है, तो 2⁻16 -2 कर लो, तो भी आपके कितने होते हैं, अराउंड 16,000 कुछ अराउंड आपके आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है इसके अंदर। अच्छा, अगर मेरा कुछ रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा नेटवर्क है, इसके अंदर मेरा कुछ रिक्वायरमेंट है अराउंड 100 पीसी का, या चलो 200 पीसी का, चलो मेरा अगर पूरी कंपनी है तो मेरे पास में 500 वर्क स्टेशन है। ओके, आई एम हैविंग 500 वर्क स्टेशन इन माई कंपनी XYZ। ओके, तो ये अमीर हो गई कंपनी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्क स्टेशन मुझे लगाना है, ठीक है। अब अगर मैं ये रेंज अगर लेता हूँ, अगर मैं ये लेता हूँ, तो ये लेने के बाद में मैं कितने यूज करूंगा, इसमें से मैं खाली 500 यूज कर रहा हूँ। ओके, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई वी रिक्वायर्ड सबनेटिंग। ओके, तो आई हैव यूज ओनली 500 आईपी एड्रेस। चलो मैंने एक्सटेंशन किया, मेरी कंपनी बहुत मतलब डेवलपमेंट हुआ, और मेरी कंपनी और अच्छी सी काम करना शुरू किया, और मुझे 500 के बाद में और मैंने एक खोल लिया, 500 मुझे और लग गए, ठीक है। तो भी कितने हो गए, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में जाके भी आपके पास में 1000 यूजर ही हो पाए, ठीक है। तो 1000 आईपी एड्रेस आपने यूज किए, और ये अवेलेबल कितने हैं इसके अंदर, 16,000 अराउंड, 16,000 अराउंड आपके आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। बाकी सारे आईपी एड्रेस आपके क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे आईपी एड्रेस आपके वेस्ट हो रहे हैं, इस वेस्ट को हमको बचाना है, ठीक है। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा थॉरोली बता दिया। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल डायग्राम पे, ठीक है। सो इमेजिन दिस इज माय 2 राउटर्स। ओके, ये मेरा एक राउटर है, ये मेरा एक राउटर, ठीक है। राउटर को यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्टेड है, 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 एंड बोथ द राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर आल्सो। ओके, सो इमेजिन कर लो ये वाला नेटवर्क में नंबर ऑफ पीसीस कनेक्टेड है अराउंड 20। ओके, मैं तो चेक कर लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है या नहीं। ओके, आप लोग को दिख रहा है। ओके, मैं ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऐसे ट्राई करूंगा। So for example, this is the network which is connected to router 1. Okay, this is router 1, this is router 2, and you know that the router which act as the interface, we can say router which routes between the network, it works between the network, दो नेटवर्क के बीच में रह के काम करता है ये, ठीक है। राउटर की प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है, राउटर आपका क्या करता है, राउट्स बिटवीन द नेटवर्क, दो नेटवर्क के बीच में रह के आपका राउटर काम करेगा, ठीक है। आपका जो स्विच होता है, स्विच आपका जो डिवाइस होता है, हाउ इट वर्क्स, वह स्विच कैन जो आपका जो स्विच है इट वर्क्स बिटवीन द नेटवर्क, आपके नेटवर्क के बीच में रह के भी वो काम करेगा। बट राउटर एक आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क्स के बीच में रह के पैकेट्स को यहाँ से वहां जो भी ट्रांसफर करना है वो करता है। इट राउट्स बिटवीन द नेटवर्क, इट वर्क्स बिटवीन द नेटवर्क। ओके, तो ये हमारे दो राउटर्स है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके,
one network is connected, say network 1. Network 1 is connected in which 20 workstations are there, 20 PCs are connected. Okay, I have second network, I say network 2 N2. Okay, I have around 50 workstation connected in the network 2. Okay, and then I have third network, I say network 3 N3. Okay, I have around 15 workstation connected in this particular N3. That is network 3. Okay, I have network 4. Okay, around 25 machines are connected. Okay, I say this is N4. Okay, so अब ये आपका सिनेरियो है. Okay, एंड वी हैव आईपी एड्रेस गिवन 190. चलो ये हम लोग ये वाला सेम लेते हैं 190.20 डॉट आपका 10.2. ओके, ये लिए थे ना हम लोगों ने. ओके, अभी आपने लिए थे. ओके, अब ये आपको क्या करना है, अगर कभी आप इसमें असाइन करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे पता है, आप किसी एक नेटवर्क को ही दे पाएंगे. क्योंकि देखो ये जो आपका आईपी एड्रेस है, आप सेम आईपी एड्रेस दो नेटवर्क को एलोकेट नहीं कर सकते. सेम आईपी एड्रेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू टू डिफरेंट वन. आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दिस इज इट बिलोंग्स टू द क्लास बी आईपी एड्रेस, एंड इन क्लास बी आईपी एड्रेस वी हैव 16 बिट एंड वी हैव 16 बिट. ठीक है, तो 16 बिट मतलब कि आपका जो नेटवर्क कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा. अगर आप यहाँ पर अगर आप देते हैं तो यहाँ पर आपका सेम रहेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे नेटवर्क के लिए दूसरा आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग दिस वन दैट इज 190.20.10.2 अगर ये मैं दिया यहाँ पर, तो इस नेटवर्क 2 को मुझे दूसरा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा. कैसे, 190.20 अगर आप ऐसा देते हैं 20, अगर आप ऐसा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला नेटवर्क का आईपी एड्रेस, ये वाला नेटवर्क का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा. ठीक है, आपको 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 उसको करना क्या है, आपको उसको चेंज रखना है, बिकॉज आप सेम वाला आप किसी को दे नहीं सकते. अगर वो यहाँ पर यूज हो रहा है तो यहाँ पर होने के बाद में यहाँ पर होस्ट का पार्ट चेंज होते जाएगा. यहाँ पे अगर 20 मशीन कनेक्टेड है, इफ 20 मशीन आर कनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क 1, तो ये वाला पार्ट जो आपका होस्ट वाला पार्ट है ये चेंज होते जाएगा. ठीक है, और ये चेंज होते होते फिर आपका जितने भी अच्छा चलो हम लोग यहीं पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया फॉर एग्जांपल ये वाला. ओके, अब यहाँ देने के बाद में आपका जो ये होस्ट वाला पार्ट है, ये होस्ट वाला पार्ट ये आपका क्लास बी आईपी एड्रेस है. अकॉर्डिंग टू द क्लास बी आईपी एड्रेस हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द होस्ट कंपोनेंट. होस्ट कंपोनेंट में आपके 16 बिट है, तो 16 बिट 2 to 16 लगा लो, आपको अराउंड 16,000 होस्ट आने वाले हैं. ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि 16,000 होस्ट पॉसिबल है, जो कि आपने एक आईपी एड्रेस दिया 190.20.10.2. अगर आप वो आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं, सो इन दैट केस 16,000 के अराउंड आपके जो आईपी एड्रेसेस है उसमें आप खाली 20 यूज कर रहे हो. उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, सिर्फ 20 यूज कर रहे हो. और 20 यूज करने के बाद में जो बाकी के 15,980 अराउंड जो भी आपके आईपी एड्रेस जो हो रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए फिर जो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, सबनेटिंग कॉन्सेप्ट से दैट व्हाट you do the logical division of the network. Okay, you do the logical division of the network, and from the logical division of the network what you are going to do, you are going to divide this IP address into number of subnets. Okay, तो आप क्या करोगे, सेगमेंट्स बनाएंगे हम लोग उसके अंदर उसका डिवाइडेशन करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में फिर हम लोग इसको फिर एक जो है रेंज इसको दे सकते हैं. यानी कि आप उसको जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं. आपको 2 सेगमेंट में करना है, यानी कि 2 सबनेट्स में करना है, 3 सबनेट में करना है, 4 सबनेट में करना है, जितने सबनेट में करना चाहे वो आप लोग कर सकते हैं. ओके, सो एक सेकेंड ना. दो मिनट जरा.
सॉरी एवरीवन, ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे माउंटिंग का है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। माउंटिंग के लिए अब मुझे हाथ से पकड़ना पड़ेगा, शायद ये मुझे हाथ से पकड़ना पड़ेगा। मैं एक हाथ से पकड़ता हूँ और एक हाथ से आप लोगों को बताता हूँ। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Yeah, sir, but the So, screen is but upside down. upside down है. हाँ, अच्छा ये आप सुन, ओके ओके, आई मेक इट रिवर्स। ओके, कैमरा किधर है? इधर है कैमरा। ओके, नाउ ओके। Yes, sir. या चलो ठीक है, थोड़ी देर 5 मिनट में कम से कम थोड़ा मैं तुम लोगों को बेसिक यहाँ का और दिखा देता हूँ, ठीक है। सो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पर हम लोग थे कि वी हैव कंसिडर दिस राउटर 1, दिस इज राउटर 2, ओके, एंड दिस इज माय नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, ओके। सो बेसिकली क्या होगा, ओके, व्हाट इज द लॉजिकल क्या बोलेंगे इसको, द बेसिक आइडिया इज दैट your router is connected to each and every network, okay. So this is so router 1 is connected from this interface, okay. You know that router is having different interfaces, okay. Router के अलग अलग interfaces होते हैं to which the different networks are connected, okay. So router has a interface, ये वाला interface, okay, say X interface. So to X interface this network 1 is connected. Router 1 is having the another interface, that is Y interface, to which network 2 is connected, okay. पहले ये क्लियर करते हैं। दो राउटर के बीच में भी एक और नेटवर्क होता है। यहाँ पर अगर इवन कोई वर्कस्टेशन कनेक्टेड नहीं है बट यहाँ पर भी एक अलग आईपी लगता है, तो यहाँ का भी एक अलग नेटवर्क माना जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बिटवीन टू राउटर्स वन सेपरेट नेटवर्क इज देयर, ओके। इवन दो not a single computer or workstation is connected over here, but still there is a network, okay। यहाँ पर हम लोग अभी काम नहीं फिलहाल। ये हमारा नेटवर्क थर्ड है, तो हमारा राउटर 2, अच्छा ये इसका एक्स वाई हो गया एंड इसका जेड इंटरफेस है। सो वाया जेड इंटरफेस इट इज कनेक्टेड टू राउटर R2, ओके। सो यू कैन गिव द नेम P देन Q एंड देन R, ओके। सो दीज आर जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग अ नेम, ठीक है, सो दैट आप लोग को समझ में आ जाए। So router is having 1 2 3 interfaces, router 2 is having 1 2 3 interface, okay. Via different interfaces it is connected to different networks. And one thing is also clear that you are not the IP address which we have assigned to the one network cannot be assigned to another network, okay, because you know that it belongs to the class B IP address, okay. If it belongs to the class B IP address, then 16-bit, it means the first 2 octet maybe belongs to the network component, okay. The first 2 belongs to the network component, the second 2 belongs to the host component, okay. So it means that these first 2, that is 190.20, अगर कभी ये मैंने नेटवर्क 1 को असाइन किया हो तो फिर ये मैं नेटवर्क 2 को असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। सेम आईपी एड्रेस दो नेटवर्क को असाइन नहीं किया जा सकता, ओके। मतलब सेम नेटवर्क में एक आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क में होगा, दूसरे नेटवर्क को नहीं दे सकते वरना बहुत सारे बवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मैंने लिखा हूँ 190.20 दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इसको चेंज करना पड़ेगा। 190.2 मैंने 30 कर दिया हूँ, ओके। तो ये हो गया अभी चेंज मेरा, ओके। या उसको हमने एक काम करते हैं, उसको दूसरी कोई क्लास का ले लेते हैं, क्लास सी का ले लेते हैं। 198.170.2.10, ओके। ये मैंने एक आईपी एड्रेस ले लिया। अब ये बताओ कौन सी क्लास का है? इट बिलोंग्स टू क्लास सी आईपी एड्रेस। कैसे पता चला? क्लास सी 192.2.23, ओके। सो आपका जो ये 198 है, ये आपका 198 नेटवर्क 2 में आ गया, सॉरी क्लास सी में आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा लिख लेता हूँ, क्लास सी इट बिलोंग्स टू क्लास बी, ओके। चलो अब यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना है, तो यहाँ पर भी आपको नेटवर्क 3 में दूसरा, देखो मैं आपको खाली सबनेटिंग का, अभी ये लेक्चर में आपको सबनेटिंग का मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग करना चाह रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये डायग्राम से थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, बट ये वाले डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि देखो नेटवर्क का सिनेरियो बेसिकली होता कैसे और उसको सबनेटिंग हम लोग करते क्यों है, ओके। सो ये आपका नेटवर्क 3, ओके। ये आपका नेटवर्क 3, इसको देते हैं हम लोग क्लास ए का आईपी एड्रेस देते हैं। कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस बोलो मुझे। क्लास ए का आईपी एड्रेस हो गया, मैंने दे दिया 20, कहाँ पे लिखो, 20.10.1.2, ओके। ये मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया। दिस इज
valid class A IP address because the range is from 1 to 127. तो ये हो गया IP एड्रेस। ये आपके वाले आपका जो नेटवर्क 4 है इसको भी मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ। क्लास चलो क्लास बी का दे देते हैं। क्लास बी का क्लास बी की रेंज क्या है? क्लास बी की रेंज है 128 से लेकर 191 तक। ओके, तो मैं ले लेता हूँ 172.10.1.4। ओके, तो ये मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखो कि जितने मेरे 4 नेटवर्क्स है, ओके, टू ऑल दीज 4 नेटवर्क, दिस इज माय नेटवर्क नंबर 1, this is my network number 2, okay, this is my network number 3, and this is my network number 4. To all these network I have given different IP addresses to different networks, okay, कहीं किसी को मुझे मैं सेम नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। And just remember that the requirement of IP addresses, the requirement of IP addresses in the network 1 was only 20, okay. The requirement in network 2 was around 50, okay. यहाँ पर रिक्वायरमेंट अराउंड कितना था आपको? 15 था, ठीक है, 15 था। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर आपका 25 है, ओके। अब यहाँ पर आपका, चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 190.20.10.2 दिस इज माय क्लास बी आईपी एड्रेस। अकॉर्डिंग टू द क्लास बी आईपी एड्रेस ये इतना पार्ट आपका नेटवर्क का हो गया, इतना पार्ट होस्ट का हो गया। तो यहाँ पर आपके कितने सारे आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है, तो आप अंदाजा लगा लो। इसके अंदर अगर आपको सबसे पहले आपका नेटवर्क निकल गया, आपका नेटवर्क आईडी निकल गया, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी निकल गया। एज यू नो वी हैव डन इन द प्रीवियस वन, यू नो अबाउट द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी आपने निकाल लिया, आपने ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लिया। चलो इसको हम लोग यहाँ पर अपने लिख के रखते हैं, दैट इज द नेटवर्क आईडी। अगर आप लोग देख सकते हैं तो सो आपका जो नेटवर्क आईडी है वो आपने लिख लिया 190.20 ओके .0.0 ओके, ये आपका क्लास बी का है, इसके लिए आपने 00 कर दिया। आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आपने लिख लिया 190.20.255.255 ओके, ये भी आपने लिख लिया। उसके बाद में आपकी जो आपके नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट है, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसको हमेशा आप लोग जो है ना तो 1 से स्टार्ट करो। अभी जहां से उसने दिया है 10.2 से दिया है तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया 190.20. आपने स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जांपल 10.2 से स्टार्ट किए, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका 4, ऐसे आपके चलते जाएंगे। तो कितने सारे होस्ट बन जाएंगे? ये आपके है 16 बिट, तो 2⁻16 - 2 आपका अराउंड हो जाएंगे 16,000, ठीक है, 16,000। तो सोचो 16,000 आपके नंबर ऑफ होस्ट आर पॉसिबल इन दिस नेटवर्क 1, बट वी आर यूजिंग ओनली 20 आईपी एड्रेस, वी आर यूजिंग ओनली 20 आईपी। द सेम कॉन्सेप्ट जो आपका मैंने यहाँ पर बताया वो यहाँ पर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट बाय ड्रॉइंग डिफरेंट नेटवर्क, ओके। तो यू कैन सी, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट out of these 16,000 network only 20 IP addresses are getting used and the remaining are wasted, ठीक है, बाकी सब हमारे वेस्ट हुए। तो यहाँ पर हमारा हो गया वेस्ट, ओके। यहाँ पर आप कंसिडर करो दिस इज क्लास सी आईपी एड्रेस। इन क्लास सी आईपी एड्रेस हाउ मेनी बिट्स आर ऑन द होस्ट साइड? हाउ मेनी बिट्स आर ऑन द होस्ट साइड? कितने होते हैं? how many bits in the host side? Only 8 bits are in the host side, ठीक है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा कम नुकसान होगा। कैसे कम नुकसान होगा? बिकॉज आपका ये वाला पार्ट खाली होस्ट का है, मतलब द लास्ट ऑक्टेट बिलोंग्स टू द होस्ट पार्ट, ओके। तो यहाँ पर अगर 2:8 है तो 2:8 - 2 कर लो तो आपका अराउंड 254 आ जाता है, ठीक है। सो 254 मतलब के आपके 254 टोटल नंबर ऑफ होस्ट आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, जिसमें से आप लोग 50 यूज करने वाले हो। तो 254 - 50 इज इक्वल टू हाउ मच? 204 अराउंड। तो फिर भी सिर्फ 204 आपके नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे, ओके। तो कंपैरेटिवली आपके जो सी क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं उसके अंदर वेस्टेज कम होता है एज कंपेयर टू क्लास ए एंड क्लास बी, बिकॉज वहां पर मोर नंबर ऑफ होस्ट आर पॉसिबल, ओके। वैसे ही आपका क्लास ए का है, देखो अब यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा, ठीक है। 20.10.1.2 तो आपको पता है क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं? 24 बिट्स होते हैं नंबर ऑफ होस्ट के। तो 22 - 24 - 2 अंदाजा लगा लो, लैक्स में जाएंगे कुछ तो आपके
तो आपके इतने सारे, अच्छा रिक्वायरमेंट कितना है आपका, ओनली 15 पीसी का रिक्वायरमेंट है, ओनली 15 कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है. So you got the 15 IP address and the remaining are vested. You cannot use those IP addresses. यहाँ के IP एड्रेस को आप यहाँ पर नहीं यूज कर सकते. यहाँ के IP एड्रेस को आप यहाँ पर और यहाँ पर भी यूज नहीं कर सकते. एक नेटवर्क में उस IP एड्रेस के जो रेंज है वो उसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर यूज होंगी. ओके, तो चलो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ. सो यू कैन सी यहाँ पर भी क्या हमारा लैक्स के अंदर हमारे बहुत सारे आईपी, यहाँ पे थाउजेंड्स के अंदर हमारे वेस्टेज हुआ. यहाँ पर ओनली 204 वेस्ट हुए, यहाँ पर लाखों में हमारे वेस्ट हुए. और ये भी आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पर भी इक्वल 1000 के अंदर आपका वेस्ट हो जाएगा. तो यू कैन इमेजिन इतना सारा वेस्टेज हम बर्दाश्त कैसे करें, इतना सारा वेस्टेज हम लोग कैसे सह सकते हैं. इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है कि भाई आप क्या एक काम करो, सबनेटिंग कर लो. सबनेटिंग अलाउज us to do the logical division of the network. So whatever IP address we have which is given like 190.20.10.2 ये IP address हमको दिया गया था. इसी के आपको जितने टुकड़े करना है करो. तो लॉजिकल डिवीजन हम लोग कर सकते हैं. तो फिर आपके लॉजिकल डिवीजन करके फिर आप इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, तो प्रॉपरली हम सबको असाइन कर सकते हैं. ये हम एक्चुअल पार्ट देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, कैसे एक्चुअल डिवीजन करते हैं. द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस सेशन जो हमारा आज का हुआ, इसका समरी ये है, व्हाई सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, व्हाई सबनेटिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज वी वांट टू स्टॉप द वेस्टिंग ऑफ योर आईपी एड्रेसेस. हमको अपने आईपी एड्रेस को वेस्ट होने से बचाना है. इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा है सबनेटिंग. ओके, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होंगी. और थोड़ा सा जो मैंने डायग्राम से आप लोग को समझाया हूँ, तो ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी. ठीक है, सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबनेटिंग करके देखेंगे. ठीक है, तो एक ही आईपी एड्रेस के मल्टीपल सबनेट्स बना के हम लोग ट्राई करेंगे. डिफरेंट क्लासेस की भी ले सकते हैं. क्लास ए को ब्रेक करेंगे, क्लास बी को ब्रेक करेंगे, क्लास सी को ब्रेक करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, द समरी ऑफ दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट दिस सबनेटिंग. Because of the depletion, because of the limited IPv4 addresses, the address spaces, we have different solution. The first solution is we can use the private IP, we can go for the IPv6, and the third option we can go for the subnetting. Okay, subnetting is nothing but the logical division of the network. Okay, so we can have and we can use and we can prevent the IP address to be wasted in different networks. Okay, so for the different networks we can use the same IP address by logically dividing it. Okay, so आज के इनकन्वीनियंस के लिए खेद है हमको, और बाकी का इसका हम लोग कल देखेंगे. मैं आप लोग को अटेंडेंस शीट शेयर करता हूँ. थैंक यू सो मच. I'll stop sharing the screen.